Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the glycolysis in detail. Let's start. बात आपने याद रखनी है, the most common fuel, which is also called a respiratory fuel, used by cells is glucose. याद रखिएगा. दूसरे नंबर पे, during aerobic respiration, the complete oxidation of glucose produces 36 ATPs, while during anaerobic respiration, only 2 ATPs are produced. And in eukaryotes, one glucose produce net 36 ATPs, while prokaryotes produce net 38 ATPs per glucose. Okay? और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट MCQ, during alcoholic and lactic acid fermentation, only 2% of total energy present in glucose is produced. Means कि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों तरह की, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जितनी एनर्जी मौजूद है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, उसका सिर्फ 2% ही जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. यूकैरियोट्स में एक ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन 36 ATPs नेट प्रॉफिट, while in prokaryotes the complete oxidation of one glucose it yields 38 ATPs. That's the net profit. Clear? So अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ. एनारोबिक हो गई हमारी. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन it occurs in 4 steps. MCQ के लिए मार्क कर लीजिए. कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स. नंबर 1 is glycolysis. Number 2 is oxidation of pyruvate. Number 3 is Krebs cycle. And number 4 is the respiratory chain, also known as electron transport chain. Dear students, यहाँ पर important MCQ. Glycolysis, it occurs in cytoplasm of the cell, while all the other 3 steps, they occur in the mitochondria.
और द पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक अहम चीज अब डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। So glycolysis, sorry, glycolysis, it is the common step in aerobic as well as anaerobic respiration. ये MCQs के लिए मार्क कर लीजिए कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन स्टेप कौन सा है इन चारों में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। बिकॉज इट इज ऑक्सीजन इनडिपेंडेंट, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द रीजन इज इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक। और इसमें किया क्या जाता है कि एक ग्लूकोज को दो पायरुवेट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड one glucose is converted into two pyruvates here in this step. So how it occurs? So अब ये भी दो स्टेप में होगा. It also occurs in the two steps. It is done in two steps. Means the glycolysis. The first one is the preparatory phase, while the second one is the oxidative phase, which is also known as payoff phase. Clear? Dear students, glycolysis का एक और नाम भी है, याद रखिएगा, EMP pathway. इसको EMP pathway बोलते हैं because it was discovered by German biologists, that is Amton. Number two is Meyerhoff, and the third one is Parnas. तो ये तीन जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है. Clear? So that was the basic information related to glycolysis. So let's move on to the first phase of glycolysis, that is the preparatory phase. So what happens in the preparatory phase? Here we go. Glucose is converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. तो यहां पर फॉस्फेट कहां से आया? It is done by the splitting of 1 ATP into ADP, और इसके जो टर्मिनल फॉस्फेट होगा उसको इस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच करवाया जाएगा. इस वजह से ये स्टेप कहलाता है फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन. क्लियर? और फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. So glucose is organic molecule. ATP is splitted into ATP plus phosphate, and that very phosphate is shifted onto the 6th carbon of the glucose. Now the second step is isomerization. Isomerization. And in this step, the glucose is converted into its isomer, fructose-6-phosphate. Clear? Now, there's another phosphorylation step in which the fructose is phosphorylated, and over here again, another ATP is consumed
it is converted into ADP, phosphorylation, क्लियर। और इसमें फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर फॉस्फेट ऐड किया जाएगा और इट बिकम्स फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. Bis means two. Two phosphates are there within the same organic molecule. एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 6 पे. 6 पे पहले था, इस एटीपी का स्प्लिट होने से वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर दिया गया. Now it becomes fructose 1,6 bis phosphate. Now what happens? There is the lysis step, breakdown step. ये fructose, so आपको पता है कि जो ग्लूकोज है, it is 6 carbon. Glucose 6-phosphate, it is also 6 carbon. Fructose 6-phosphate, it is also 6 carbon. Fructose 1,6 bis-phosphate, it is also 6 carbon sugar. And nowadays, students, this 6 carbon sugar, it is broken down into 2 3 carbon sugars. Number 1, into dihydroxyacetone 3-phosphate, and the other one is glyceraldehyde 3-phosphate. Clear? और dear students, ये दोनों 3 कार्बन शुगर्स हैं. It is 3 carbon sugar. It is also 3 carbon sugar. 3 carbon sugar. It is abbreviated as D. It is abbreviated as D-dihydroxyacetone phosphate, DHAP, or simply DAP. जबकि glyceraldehyde 3-phosphate इसको abbreviate किया जाता है into G3P. Clear? Dear students, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन शुगर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. So they are interconvertible. यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, इसको आइसोमरेज कहेंगे. यहां पर आइसोमेराइजेशन होगी. ओवर हियर आइसोमेराइजेशन. सो दिस होल स्टेप इज नोन एज द प्रेपरेटरी फेज. यहां पर याद रखिएगा हमारे 2 एटीपी इस्तेमाल हुए हैं. हमारे सेल के 2 एटीपी, एक यहां पर फॉस्फोरिलेशन हुई और दूसरी फॉस्फोरिलेशन इस स्टेप के अंदर हो रही है. दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, and this is step number 4 and this is step number 5. तो dear students, एक तो G3P डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस-फॉस्फेट के टूटने से बन गया और दूसरा DHAP और DAP मींस द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करवाया जाएगा इनटू G3P. मतलब कि अगली फेज के अंदर 2 G3P के मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे. याद रखिएगा कितने? 2. नाउ हियर इज द सेकंड फेज, that is pay off or oxidative phase. तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पहुंचे हैं जी, 2G3P. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ये 2 G3P कहां से आए? एक डायरेक्टली फ्रुक्टोज के ब्रेकडाउन से और दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के फॉस्फेट की कन्वर्शन से, चूंकि दोनों आइसोमर्स हैं. तो यहां से आके 2 साइकिल एक जैसे चलेंगे क्योंकि 2 G3P बने यहां पर. तो इस स्टेप में एक तो यहां से G3P से यहां पर एक तो एडिशन होगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की दोनों साइड्स पे G3P के अंदर, क्योंकि 2 G3P के मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर मौजूद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ी हुई है. यहां पर एटीपी को नहीं तोड़ा जा रहा, ठीक है? जो सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको अटैच किसके साथ किया जा रहा है? विद द G3P, ठीक है, उसकी फर्स्ट कार्बन के साथ. तो ऑलरेडी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तीसरी कार्बन के साथ लगी हुई है, पहली कार्बन पे लगा जाएगा. अब जो फर्स्ट कार्बन पे लगेगी जाकर के फॉस्फेट, तो वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाएगा. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. क्लियर? तो यहां पर जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे दैट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट NAD इनटू NADH प्लस H. क्लियर? और इसी तरह से सेम एज इट इज यहां पर भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा.
NAD, it is converted into NADH plus H. Is that clear? तो उससे रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है? That is known as 1,3-bis-phosphoglycerate, phosphoglycerate और ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको एब्रीवेट हम करते हैं, मैं इस दूसरे पाथ पे सिर्फ एब्रीवेशन यूज करूंगा, 1,3-bis-phosphoglycerate. इज दैट क्लियर? अब 1,3-bis-phosphoglycerate यहां पर होगी phosphorylation, और here an enzyme will act, and यहां से इसकी फर्स्ट कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करेगा और एक एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा यहां पर, और इसी तरह से यहां पर भी एक और, क्योंकि दूसरा ये जो है वो G3P का मॉलिक्यूल, उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, सो 1 ADP is converted into ATP over here. क्लियर? जब एक निकल गया फॉस्फेट तो बाकी क्या बच गया? 3-phosphoglycerate. क्लियर? मींस 3PG. सो बिस निकल गया वहां से. अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी होगी पोजीशन आइसोमरिज्म. पोजीशन आइसोमरिज्म पर आपने पढ़ी हुई है कि वहां पर क्या किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को जस्ट चेंज किया जाता है. तो जो फॉस्फेट यहां पर तीसरी कार्बन पे है उसको शिफ्ट किया जाएगा टू द सेकंड कार्बन. नाउ इट बिकम्स 2-phosphoglycerate, और यहां पर क्या बन गया उसी तरह से 2-phosphoglycerate. इज दैट क्लियर? अब 2-phosphoglycerate यहां से होगा, from here the water is removed. From here the water is removed. H2O. Water is removed, and the remaining compound is now called as 2-phosphoglycerate. में से water को remove किया तो अब रह जाएगा phosphoenol pyruvate, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेट करते हैं PEP, PEP, phosphoenol pyruvate. और डियर स्टूडेंट्स, phosphoenol pyruvate की होगी यहां पर phosphorylation, मतलब कि यहां से इसके फॉस्फेट को निकलवाया जाएगा, और जो फॉस्फेट निकलेगा उस फॉस्फेट को इस्तेमाल किया जाएगा एक एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, ओवर हियर, एंड सिमिलरली ओवर हियर, एडीपी इनटू एटीपी. एंड जब इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया, नाउ द रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड pyruvate, and over here also pyruvate. तो एक ये pyruvate और दूसरा pyruvate ये. So these are three carbon compounds. शुरू कहानी कहां से हुई थी? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, कन्वर्ट किस में कर दिया गया? 2 पायरुवेट्स में. क्लियर? तो यहां पर होता है स्टेप नंबर 5. दिस इज स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब काम की बात करते हैं. यहां पर स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10, यहां पर क्या हुआ? 2 एटीपी इधर बने, 2 एटीपी इधर बने हैं, सिंथेसिस हुई है. टोटल कितने हो गए? 4. 1 एटीपी ओवर हियर, 1 एटीपी ओवर हियर, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर. टोटल 4 एटीपी बन गए. यहां पर जो एटीपी बने हैं वो कैसे बने हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से फॉस्फेट को निकाला गया है, एक सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट को निकाला गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब किसी ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड में से फॉस्फेट को निकाला जाए और किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पे उसको ट्रांसफर किया जाए, है तो ये फॉस्फोरिलेशन, लेकिन किससे फॉस्फेट लिया गया? एक सबस्ट्रेट से. तो इस तरह की फॉस्फोरिलेशन को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या चीज है?
कि आपने एक फॉस्फोरिलेटेड, मतलब कि जिसके अंदर फॉस्फोरेशन हो चुकी है, एक फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से आपने फॉस्फेट को निकलवाया और उसको शिफ्ट किया टू दैट वेरी फॉस्फेट टू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म एटीपी। दिस काइंड ऑफ, चूंकि ये सबस्ट्रेट था, यहां पर ये टोटल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाएगी, जो कहां पर हो रही है। अब ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए, एक स्टेप नंबर 7 में ग्लाइकोलाइसिस के, और दूसरा एंड द स्टेप नंबर 10, 2 स्टेप्स में हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इज दैट क्लियर?